Good morning, students. Welcome to the class of English Literature. Today we are going to start our second paper, that is prose and fiction. And we will begin this paper by reading a story written by Ruskin Bond. There is an introduction about the author. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He is considered to be an icon among Indian writers and children's authors and a top novelist. He wrote his first novel, The Room on the Roof, when he was 17 years old. Since then, he has written several novellas, over 500 short stories, as well as various essays and poems, all of which have established him as one of the best loved and most admired chronicler of contemporary India. In 1992, he received the Sahitya Academy Award for English writing for his short stories collection A Trees Still Grow in Dehra by the Sahitya Academy, that is India's National Academy of Letters. He was awarded the Padam Shri in 1999 for his contribution to children's literature. And now he is living with his adopted family near Mussoorie. The title of the story is The Meeting Pool. It is a short story about three friends whose name is Somi, Anil and Rusty. Rusty is the narrator of the story. So we can say this story is written in first person narrative. In first person narrative we can see the narrator is present in the story. तो यहाँ ये कहानी जो है फर्स्ट पर्सन नरेटिव में लिखी हुई है, यानी जो कहानी बताने वाला है वो इस कहानी में एक पात्र के रूप में, एक कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट है. रस्टीज पूल. देयर इज ए पूल इन द स्टोरी दैट इज कॉल्ड रस्टीज पूल, जिसे रस्टी का पूल कहा गया है. द रीजन ऑफ कॉलिंग इट रस्टीज पूल बिकॉज रस्टी इज द पर्सन हु इन्वेंटेड दिस पूल, and this pool becomes the meeting point of all these friends. They do different kind of activities like fishing, swimming, wrestling and buffalo riding, etc. This pool is a symbol of the bond of friendship. They take a pledge, and what kind of pledge it is that which these three friends take, we will read in the story. Rusty keeps up his word and follow their promise. वो जिस प्लेज को लेते हैं, जिस शपथ को लेते हैं तीनों फ्रेंड्स, उसमें से रस्टी जो होता है वो अपनी बात पे, अपनी प्रॉमिस पर कायम रहता है. बट वेन ही कम्स ही फाइंड दैट नोबडी इज देयर. सो व्हाट इज द प्लेज, हाउ दीज फ्रेंड्स एंजॉय एट द पूल, एंड व्हाट इज द message of the story. All these things we will understand by reading the text of the story. Now it is the text of the story. The story begins as, it was Somi's idea that we should meet at the pool in 10 years time. There are three friends. तो इनमें से जो सोमी है उसका विचार था कि हम 10 साल के बाद इस पूल पर आकर मिलेंगे. When we are men, he said, we must come back to this place 10 years from today. Rusty, at midday on the 5th of April 1964, we must return to the pool. So what he said, उसने क्या कहा कि आज से पूरे 10 साल के बाद दोपहर के समय, और उस दिन क्या डेट होगी, 5 अप्रैल 1964 को हम सभी लोग इस पूल पर वापस आएंगे. No matter where we are or what we are doing, or if we are married and have children, we must meet at the pool. कोई फ़र्क नहीं पड़ता 10 साल के बाद हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हम मैरिड हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन हर हाल में हमें इस पूल पर आकर मिलना है. प्रॉमिस. सो सोमी asked for a promise to his friends Anil and Rusty. Promise, I said. Rusty ने कहा promise. Promise said Anil. अनिल ने भी promise किया. तो तीनों जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने ये प्रॉमिस किया इस पूल पे, जिस पूल के बारे में ये बात कर रहे हैं और जिसके बारे में आगे भी पूरी स्टोरी में हम पढ़ेंगे,
उन्होंने ये प्रॉमिस किया दैट आफ्टर 10 years फ्रॉम टुडे, कि आज से 10 साल के बाद वो उस पूल पर आकर एक दूसरे से मिलेंगे. दैट पूल विल बिकम देयर मीटिंग पॉइंट. इट वॉज ए स्कूल बॉयज प्लेज एंड मेड इन डेडली अर्नेस्ट. ये एक स्कूल बॉय की प्लेज थी, शपथ थी, और पूरी ईमानदारी से ये कसम खाई गई. एज बॉयज़ वी यूजुअली मीन द थिंग्स वी से. बॉयज़ के रूप में जो कुछ भी हम कहते थे उस चीज़ पे हम कायम रहते थे. एंड सो वी शूक हैंड्स ऑन इट एंड डाइव बैक इन टू द वाटर. और इस तरह से ये कसम खाने के बाद एक दूसरे से हमने हाथ मिलाया और फिर वापस हमने पानी में डुबकी लगाई. द पूल हैड बिन डिस्कवर्ड बाय मी ए फ्यू मंथ्स अर्लियर. ये पूल जो है वो मेरे द्वारा कुछ महीने पहले डिस्कवर किया गया. यहाँ आई मी किसे रेफर कर रहा है? रस्टी को. आई रिमेंबर दैट इट वॉज गोइंग टू रेन. मुझे याद है उस दिन बारिश हो रही थी. आई कुड सी द रेन मूविंग अक्रॉस द फुट हिल्स एंड आई कुड स्मेल इट ऑन द ब्रीज. मैं देख पा रहा था कि कैसे बारिश का जो पानी है वो पहाड़ियों पर से मूव कर रहा था और हवा में भी इसकी खुशबू जो है रेन वाटर की, बारिश होने की, वो मुझे फील हो रही थी. बट इंस्टेड ऑफ टर्निंग होमवर्ड्स I pushed my way through the leaves and brambles that grew across the forest path. लेकिन घर जाने की बजाय, बारिश होने वाली लग रही थी, बारिश की इसको फीलिंग आ रही थी, तो घर जाने की बजाय ये उस तरफ चला गया जहाँ पर लीव्स, ब्रैम्बल्स, झाड़ियाँ जो थी, फॉरेस्ट का जो रास्ता था, उस साइड में रस्टी निकल गया. I had heard the murmur of water at the bottom of the hill and I wanted to see the water and touch it. और वहाँ मैंने पहाड़ी के बॉटम में पानी की मरमरिंग की साउंड सुनी और मैं उस पानी को टच करके देखना चाहता था, उसे टच करके फील करना चाहता था. स्लाइडिंग डाउन ए rock face into a small ravine, I found the stream running over a bed of shingle. और मैंने क्या देखा कि स्मॉल रेवाइन जो है वहाँ से वाटर जो है एक रोक से स्लाइड करते हुए एक स्ट्रीम के रूप में, एक नदी के रूप में, वहाँ जो शिंजल की बैड्स यानी जो पेबल्स थे वहाँ उनके ऊपर से रन कर रहा था. वाटर ट्रिकल डाउन फ्रॉम द हिल साइड. हिल साइड के पास से पानी जो है वो टपक रहा था. फ्रॉम अमंगस्ट फर्न्स एंड ग्रासेस एंड वाइल्ड प्रिमरोजेस. वहाँ जो वेजिटेशन थी, फर्न्स, ग्रासेस और प्रिमरोजेस थे, उनके बीच में से पानी जो है वो ट्रिकल कर रहा था, इसकी बूंदें टपक रही थी. द रोक्स बिसाइड द स्ट्रीम वर स्मूथ. और उस नदी के पास में जो चट्टान थी वो पूरी तरह से स्मूथ थी. एंड फॉर्म ऑफ देम वॉज ग्रे एंड सम येलो. और उनमें से कुछ ग्रे थी और कुछ येलो थी. ए स्मॉल वाटरफॉल केम डाउन द रोक्स एंड फॉर्म्ड ए डीप राउंड पूल ऑफ एप्पल ग्रीन वाटर. और इन रोक्स के ऊपर से एक स्मॉल वाटरफॉल जो है वो आ रहा था और उसने नीचे आकर एक एप्पल ग्रीन कलर के वाटर का पॉन्ड बना लिया. सो वाई द वाटर इज लुकिंग ऑफ एप्पल ग्रीन कलर? बिकॉज ऑफ वेजिटेशन प्रेजेंट इन इट, अंडर इट. When I saw the pool, I turned and ran back to town because I wanted to tell the other. जब मैंने उस पूल को देखा तो मैं मुड़ा और टाउन की तरफ भागा क्योंकि मैं इसके बारे में दूसरों को बताना चाहता था. अनिल एंड सोमी वर माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. और सबसे घनिष्ठ मित्र मेरे जो थे वो अनिल और सोमी थे. अनिल लिव्ड इन क्राउडेड लेन ऑफ द दिलाराम बाज़ार. अनिल जो है एक भीड़ भाड़ वाली गली जो थी दिलाराम बाज़ार की, वहाँ रहता था. He was wild and a little dangerous, subject to moods and impulses. वो वाइल्ड और थोड़ा खतरनाक था. उसको इम्पल्सेस, आवेग बहुत आते थे, सडनली उसका मूड चेंज हो जाता था. बट ही हैड ए सर्टन एनिमल चार्म. लेकिन उसमें एक एनिमल अट्रैक्शन था. सोमी ऑन द अदर हैंड वॉज सेंसिटिव. यानी जो अनिल है उसका नेचर यहाँ बताया कि वट काइंड ऑफ नेचर ही इज़ हैविंग वाइल्ड और इम्पल्सिव नेचर. और सोमी is just opposite to Anil. He was sensitive, gentle in his ways, but in common with Anil, he had a sense of fun and an instinct for adventure. लेकिन दोनों में, अनिल और सोमी में एक चीज़ कॉमन थी, that they have a sense of fun and they also want to do adventure. यानी एडवेंचर को लेके दोनों में ही एक inherent प्रवृत्ति थी. They usually chose the adventures we were to have.
अक्सर जो भी एडवेंचर हम करते थे उनको वो दोनों ही चूज़ करते थे, एंड आई वुड जस्ट ग्रम्बल एंड अलाउ माई सेल्फ टू बी इन्वॉल्व इन देम। और मैं हमेशा ग्रम्बलिंग करके रह जाता था और अपने आप को मुझे उन एडवेंचर्स में इन्वॉल्व करना पड़ता था। बट द पूल वॉज माई ओन डिस्कवरी एंड आई वॉज प्राउड ऑफ इट। लेकिन ये जो पूल था ये मेरी खुद की खोज थी और मुझे इस पर बहुत गर्व हो रहा था। ही वॉन्ट्स टू से, रस्टी वॉन्ट्स टू से that till now whatever adventures all these three friends did were invented or created by Somi and Anil, but this is the first time when he has discovered something new and he was feeling proud of it. We call it Rusty's pool, said Somi. जब उसने अपने फ्रेंड्स को, सोमी और अनिल को, इस पूल के बारे में बताया तो सोमी ने कहा हम इस पूल को क्या नाम देंगे, रस्टी का पूल। एंड रिमेंबर इट इज़ ए सीक्रेट पूल, नो वन एल्स मस्ट नो अबाउट इट। और याद रखो ये एक सीक्रेट पूल है, किसी दूसरे को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। आई थिंक इट वॉज द पूल दैट ब्रॉट अस टुगेदर मोर देन एनीथिंग एल्स। और मुझे लगता है कि ये पूल ही था जो हमें एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक ले आया किसी और चीज़ की तुलना में। सोमी वॉज ए ब्यूटिफुल स्विमर, ही डाइव्ड ऑफ rocks and went gliding about under the water like a long golden fish. और सोमी जो था वो स्विमिंग में बहुत अच्छा था, वो डाइव करता और फिर ग्लाइड करते हुए पानी के नीचे ऐसे लगता जैसे कि कोई लंबी गोल्डन फिश हो। सो हियर राइटर हैज़ यूज सिमिली हियर सोमी while swimming is compared with a long golden fish. Anil's legs and arms were very long and he thrashed about with much vigor but little skill. दूसरी तरफ अनिल जो है उसकी लेग्स और आर्म्स जो है वो लंबी बहुत थी और वो पानी में पूरे जोश के साथ गिरता, स्किल उसमें इतना नहीं था। मीन्स ही वॉज नॉट ए गुड स्विमर, स्विमिंग का स्किल नहीं था, वो उसमें अपना वीगर, अपना स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करता। आई कुड डाइव ऑफ ए रोक टू बट आई यूजुअली लैंडेड ऑन माई स्टमक। मैं भी रोक से डाइव ऑफ करता लेकिन अक्सर मेरे साथ क्या होता, मेरा स्टमक जो है वो लैंड ऑन हो जाता, यानी मेरा स्टमक जो है वो पॉन्ड के तले पे टच होता। देयर वर स्लिम सिल्वर फिश इन द वाटर्स ऑफ द स्ट्रीम। वहाँ नदी का जो पानी था उसमें स्लिम सिल्वर फिश थी। एट फर्स्ट वी ट्राइड कैचिंग देम विद ए लाइन बट दे सून एक्वायर्ड द आर्ट ऑफ टेकिंग द बीट विदाउट बीइंग कॉट ऑन द हुक। शुरू में तो हमने कोशिश की उनको कांटे से फंसाने की, लेकिन बहुत जल्दी ही इन फिश ने ऐसा आर्ट एक्वायर कर लिया कि उनको जो बीट यानी जो ईटिंग के लिए, खाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो दिया जाता था कांटे में लगाकर, उसे तो वो ले जाती और खुद हुक में नहीं फंसती। नेक्स्ट वी प्रोक्योर्ड ए बेडशीट। उसके बाद सेकंड इन्होंने ट्राई किया टू गेट तो सिल्वर फिश, वो एक बेडशीट लेके आए। अनिल रिमूव्ड इट फ्रॉम हिज मदर्स लॉन्ड्री। और ये बेडशीट कहाँ से आई, ये बेडशीट अनिल जो है अपनी मदर की लॉन्ड्री से लेके आया। एंड वी स्टेच्ड इट अक्रॉस वन एंड ऑफ द स्ट्रीम बट द फिश वुडंट कम एनीवेयर नियर इट। और हमने इसको स्ट्रीम के एक एंड से पूरी तरह स्ट्रेच कर दिया, इसको शीट को, बेडशीट को, बट द फिश वुडंट कम एनीवेयर नियर। लेकिन फिश जो है वो इस बेडशीट के पास नहीं आई। सो दे ट्राइड टू डिफरेंट मेथड्स टू कैच द फिश। फाइनली विदाउट टेलिंग अस Anil fetched a stick of gunpowder from a fireworks shop. Somi and I were startled out of an afternoon siesta by a flash across the water and a deafening explosion. Finally, what Anil did, for 2 times they were not succeed in catching the fish. Anil fetched a stick of gunpowder. अनिल जो है वो गन पाउडर की स्टिक ले आया फायर वर्कशॉप से, और एक दोपहर को, आफ्टरनून सिस्टम में दे वर टेकिंग इन नैप, वो दोपहर की एक हल्की सी नींद ले रहे थे सोमी और रस्टी, और उनकी नींद खुली कैसे, पानी का जो फ्लैश है और एक डेफनिंग बहरा कर देने वाला एक विस्फोट हुआ, उसको सुनते ही वो लोग जागे। हाफ द हिल साइड टम्बल्ड इन टू द पूल। उन्होंने क्या देखा
कि आधी पहाड़ी पूल में गिर गई थी एंड सो डिड अनिल, और अनिल भी पूल में गिर गया था। बट वी गॉट हिम आउट, लेकिन हमने उसे बाहर निकाला अलॉन्ग विद ए गुड सप्लाई ऑफ स्टर्न फिश, और वहाँ जो बेहोश हुई मछलियाँ थी वो भी हमें काफ़ी मात्रा में मिली। दैट वर रियली टू स्मॉल टू इट, लेकिन ये फ़िश जो है वो बहुत छोटी थी खाने के लिए। अनिल हाउएवर डिडंट वांट ऑल हिज वर्क गोइंग टू वेस्ट। अनिल नहीं चाहता था कि उसका मेहनत जो है वो बेकार जाए, सो ही रोस्टेड हिज फिश ओवर ए फायर एंड ईट देम बाय हिमसेल्फ इंक्लूडिंग देयर टेल्स। इसलिए अनिल ने क्या किया, उन फिश को फायर पे रोस्ट किया और फिर वो अकेला ही उनको उनकी टेल्स के साथ खा गया। द इफेक्ट्स ऑफ द एक्सप्लोजन गेव अनिल अनदर आइडिया। ये जो एक्सप्लोजन किया था इससे अनिल को एक नया आइडिया आया। क्या आइडिया? टू एनलार्ज आवर पूल बाय बिल्डिंग ए डैम अक्रॉस वन एंड। वो चाहता था कि इसी तरह से अपने पूल को बड़ा किया जाए और उसके ऊपर एक डैम बनाया जाए उसके एक एंड पे, एक किनारे पे। दिस वॉज अकम्प्लिश्ड विद आवर कम्बाइंड लेबर, और ये काम हम सब ने मिलकर मेहनत से, हमारा कम्बाइंड लेबर था इस काम के लिए कि डैम बनाया जाए उस पर। बट वी हैड चोजन द सीजन ऑफ द मानसून रेन्स, लेकिन इन्होंने जो सीज़न इस काम के लिए चुना वो मानसून का था। एंड वन डे टोरेंट ऑफ वाटर केम रशिंग डाउन द बेड ऑफ द स्ट्रीम बर्स्टिंग द डैम एंड फ्लडिंग अस आउट ऑफ द रेवाइन। लेकिन एक दिन पानी का इतना तेज बहाव आया कि उससे वो डैम भी बह गया और उसके साथ साथ हम भी चले गए, हम भी उस पानी के साथ बह गए। और क्लोथ्स वर कैरिड अवे, हमारे कपड़े भी उस पानी में बह गए। एंड वी हैड टू वेट अंटिल इट वॉज डार्क बिफोर स्लिंकिंग होमवर्ड स्टार्क नेकेड, क्योंकि हमारे कपड़े नहीं थे, कपड़े बह चुके थे, तो हमें रात का वेट करना पड़ा अंधेरा होने का, ताकि अंधेरा हो और तब हम घर जाएं। वी केप्ट टू द डार्केस्ट एलीज, बिल्कुल अंधेरी गलियों में से हम निकले। बट सोमी वॉज स्पॉटेड नियर ए लैम्प पोस्ट, लेकिन सोमी जो है उसको लैम्प पोस्ट के पास देख लिया गया। ही सिमुलेटेड द स्टैंस ऑफ ए नेकेड फकीर एंड बिगेन कॉलिंग फॉर आर्म्स। लेकिन सोमी ने क्या किया, उसने एक नेकेड फकीर का पोज बनाया और भिक्षा मांगने लगा। एंड फाइनली स्लिप्ड इन थ्रू द बैक डोर ऑफ हिज हाउस विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, और बिना पहचाने अपने घर के पिछले दरवाजे से घर में घुस गया। सो दीज आर द एक्टिविटीज these three friends are doing at this pool. Other activities at the pool included wrestling and buffalo rides. We wrestled on a strip of sand that came down to the edge of the water and rode on a couple of buffaloes that sometimes came to drink and wallow in the more muddy part of the stream. तो ये लोग यहाँ और क्या करते थे, रेसलिंग करते थे, और जो बफेलोज आती थी पानी पीने के लिए उन पर बैठकर राइडिंग करते थे। वी वुड सिट एस्ट्राइड द बफेलोज एंड किक एंड यल एंड अर्ज देम फॉरवर्ड। हम बफेलोज पर दोनों साइड में पैर करके बैठ जाते, उन पर किक मारते और उन्हें चिल्लाते, कहते आगे चलने के लिए। बट वी वर नेवर एबल टू मूव दम, लेकिन बफेलोज क्या होती है, एक जगह पर ही बैठी रहती, हम उन्हें कभी भी मूव नहीं कर पाते। एट बेस्ट दे वुड रोल ओवर ऑन देयर बैग्स, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी बैग जो है वो चेंज कर लेती थी, टेकिंग अस विद देम इनटू द सॉफ्ट मड, और हमें भी अपने साथ वहाँ जो मड था उसमें गिरा देती थी।